सर हाँ बोलो। सर हमें पेमेंट में मतलब जो अमाउंट फीस की होगी पे करने के लिए जो फॉर्म बनेगा उसमें कोई कैलकुलेशन भी करानी होगी अमाउंट में? आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बताओ। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। नहीं, फी में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए तो फी जो होगी वो फिक्स होगी। तो जो नहीं इंस्टॉलमेंट दी सर, हो, मतलब जैसे कोई इंस्टॉलमेंट में करे तो? हाँ हाँ, इंस्टॉलमेंट में करेगा तो इंस्टॉलमेंट में आप फी डिपॉजिट, आपने इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन रखा है? नहीं सर, अभी तो नहीं करा। अच्छा, उसमें आप इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन करा सकते हैं। दो प्रोविजन उसमें आप डाल सकते हैं, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। अगर स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चूज करता है तो आप फिक्स इंस्टॉलमेंट बना लीजिएगा कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करानी है या 3 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करानी है। अगर दो इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करानी है तो उसको एनुअल फी को डिवाइड बाय 2 करके 2 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 3 में करानी है तो 3 में कर लीजिएगा। आप एक नॉर्म बना लीजिए कि आप कितने इंस्टॉलमेंट रखना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लमसम यानी कि फुल पेमेंट, दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट। अब अगर यूजर इंस्टॉलमेंट चूज यस। करता है तो हमारे पास केवल 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। जो एनुअल फी है उसको 2 से डिवाइड करके 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, यस सर। टुडे वी विल लर्न हाउ वी कैन डेवलप मेन प्रोग्राम, main screen of our project, so that all the operations of our project can be controlled from that machine, that program. To develop main program of our project, we are required to develop a menu driven interface which will be consisting of commands, which will be consisting of options to run all the programs which are available in our project. Therefore, in today's session, we will be learning how to work with menus. As you all know, to work with menus, basically we have to work with 3 things. First is menu bar, second are menus, and third one menu items. What is menu bar? A menu bar is a horizontal line just below the title bar. किसी भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में, किसी भी GUI एप्लीकेशन में जब हम वर्क करते हैं, every GUI application will be started in the form of a window. As you are seeing on your screen, we are working with Notepad, and Notepad is a GUI application. Therefore, when we start the Notepad, Notepad will be started in the form of a window. Now, at the top of the Notepad, this is the title bar, which consists of the title of the application. Just below the title bar, this is a horizontal line which is known as menu bar. Menu bar consists of different menus such as file menu, edit menu, format menu, view menu, help menu, etc. These are known as menus. And when we click on a menu, a list of commands will be displayed. These commands are known as menu items. It means whenever we want to create a menu, whenever we want to work with menus, first of all, we will create a menu bar. Then we will create menus. Then we will add menus to the menu bar. Then we will create menu items. Then we will add menu items to the menus. And at last, we will add menu bar to our frame. Clear, students? Yes Yes, sir. sir. As we all know, since Java is an object-oriented programming language, therefore Java provides classes to perform each and every task. Therefore, to work with menus, Java provides 3 classes. One class is for menu bar, another is for menu, and another is for menu items. To work with menu bar, if we are working with AWT, class is menu bar. If we are working with Swing, class is JMenu bar. To work with menus, in case of AWT, class is menu. In case of Swing, class is JMenu. And to work with menu items, in case of AWT, class is menu item. And in case of Swings, class is JMenu item. Clear, students? Okay Yes, sir. sir. Yes sir. So far, we have developed a program for the purpose of change password. We have developed a program
for the purpose of new registration, for the purpose of modify registration, for the purpose of delete registration. So now what we are doing, but so far we have different programs to perform each and every task. It means now if we want to perform new registration, we have to run new registration program. If we want to modify the registration, we have to run modify registration program. If we want to perform delete registration, we have to run delete registration program. If we want to change the password, we have to run change password program. Now what we want to do, we want to encapsulate all these operations from a main program. Means we will be developing a main program which consisting of two menus. First menu is account details, second menu is registration details. Account details menu consists of two menu items. First is change password, second is exit. Registration details menu comprises of three menu items. First is new registration, second is modify registration, and third is delete registration. Clear students? Yes, sir. तो बनाते हैं वो मेन प्रोग्राम. देख पा रहे हैं नोटपैड? Yes, sir. First of all, we will import all the required package. We are using swings, therefore first of all we will import swing. Now we will define a class. Suppose we say class main extends. This is our main program. That's why we have given the class name as main extends JFrame. Here we are required to develop a frame. Therefore we will inherit it from JFrame. Now we are required to develop a menu bar. Therefore we will declare an object of JMenu bar, say MB. We are required to work with two menus. Therefore we will create two objects of menu class, say M1, M2. Now we are required to work with menu items. Therefore we will create some objects of JMenu item. First is for change password. Suppose we give the name CP. Second is for exit. Suppose we give the name EX. Third is for new registration. Suppose we give the name NR. Another is for modify registration. We give the name MR. And last one is for delete registration. We give the name DR. Clear, students? Yes, sir. Now we will define the constructor. Here, first of all, we will create our frame. Set title. Suppose we give the name of the organization. Organization name is Diwan VS Group of Institutions. Then we will say set size. Say 600, 600. We will say set resizable. Location. False. We will say set default close operation. Say exit on close. Now we will say set location. Say 200, 200. Clear, students? Yes, sir. Now Yes, sir. we have created a frame. Now we will create menu bar. We will say MB equal to new J menu bar. Menu bar. For a menu bar, Sir, we are set location just में sir bracket बंद नहीं हुआ है. Okay. For a menu bar, just we are required to create a menu bar. Because Yes, sir. it does not have any physical appearance. Menu bar has been created. Now we will create menus. M1 equal to new J menu. This is for account or login details. Whatever the text you want to give. Then M2. This is for the registration details. Now we will create menu items. First is change password equal to new J menu item.
text will be change password. Now we will say ex equal to j menu item. This is for exit. Exit. Now these two menu item will be added to M1. Therefore, we will say M1 dot add TP, then M1 dot add EX. EX. Now we will create menu items for registration. Then we will say NR equal to new J menu item, new registration. Registration. So NR होगा. NR. Then we will say MR MR. equal to modify registration. Then we will say DR delete. DR equal to Delete delete registration. registration. Now these three menus M2 will be का added to M2. M2 dot add NR, NR. then MR, then DR. Clear, students? Yes, sir. Now we will add Yes, sir. menus to the menu bar. MB dot add M1 and MB dot add M2. M2. Now we have to add menu bar to the frame. To do so, method is set j menu bar bracket में menu bar name. So ये 9. Clear, students? Now we will show the frame. Yes, sir. Yes, sir. Closing of constructor, closing of class. Constructor. Now we will define main class, class main demo, public static void Forward man. Void. string s main mm equal to new main open close parenthesis closing of main closing of class. Now we will save it. Say d colon. Sample. We are saving our whole programs in sample folder. Sample. Give the name main demo dot Main demo. Java. All files saved. Now we will compile it. Go to command prompt. Compile the program Java C main demo dot Java. Has been compiled successfully, students. Yes, sir. Yes, sir. Now run the program. Java space main demo. As you can see the output, देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. दोनों मेन्यू आ रहे हैं. Account detail, registration details. Yes, Yes, sir. If we click on account details, pop-up of account details will be displayed. It is having two menu items, change password and exit. If we click on registration details, we will be having the menu items of registration details. It is having three menu items, new registration, modify registration and delete registration. Clear, students? Yes. Yes, sir. आप देख पा रहे हैं ये वाली जो विंडो आ रही है, ये विंडो हमने लेफ्ट से इसकी लोकेशन की थी 200, तो लेफ्ट से 200 पे आ रही है. टॉप से हमने लोकेशन की थी 150, टॉप से 150 पे आ रही है. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. हम चाहते हैं जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, हमारी ये विंडो स्क्रीन के सेंटर में आए. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो अगर आप इस विंडो को स्क्रीन के सेंटर में लाना चाहते हैं तो आपको पता होने चाहिए स्क्रीन की विड्थ कितनी है, स्क्रीन की हाइट कितनी है. उसके हिसाब से आप इसके लेफ्ट और टॉप डिसाइड कर देंगे. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब मान लीजिए मेरे पास 15 इंच स्क्रीन है,
तो मैंने 15 इंच स्क्रीन के हिसाब से लेफ्ट और टॉप डिसाइड कर दिए तो सेंटर में आ गई। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को 20 इंच की स्क्रीन पे डिसाइड रन किया जाएगा तो फिर ये क्या उस पे भी सेंटर में आ जाएगी? नो सर। नहीं आएगी, क्योंकि नो सर, हमने तो जो इसकी लोकेशन सेट की थी वो अकॉर्डिंग टू 15 इंच स्क्रीन सेट की थी। हम चाहते हैं हम इस Yes, प्रोग्राम को किसी भी इंच की स्क्रीन पे रन कराएं, किसी भी साइज की स्क्रीन पे रन कराएं। दिस प्रोग्राम, दिस स्क्रीन, दिस इंटरफेस मस्ट बी इन द सेंटर ऑफ एनी साइज स्क्रीन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए उसके लिए आप प्रोग्राम में चलते हैं वापस, जहां पर हमने लोकेशन सेट की है। हमने लोकेशन सेट की है, सेट लोकेशन, और यहाँ पे हमने पॉइंटर्स दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे सेट लोकेशन रिलेटिव टू, और कोऑर्डिनेट्स में दे देंगे नल। तो अब ये स्क्रीन को ऑटोमेटिक, अब ये इस इंटरफेस को, इस फ्रेम को ऑटोमेटिकली स्क्रीन के सेंटर में दिखाएगा, चाहे आपकी स्क्रीन किसी भी साइज की है। दिखाता हूं मैं आपको दोबारा से कंपाइल करके एंड देन रन करा के। देखिए सेंटर में आ रहा है, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है प्रोग्राम। देख पा रहे हैं? हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर? चलिए अब हम Yes, चाहते sir. हैं व्हेन वी क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड कमांड, प्रोग्राम ऑफ चेंज पासवर्ड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंड वी विल बी हैविंग द आउटपुट ऑफ चेंज पासवर्ड प्रोग्राम। जैसे ही चेंज पासवर्ड पे Yes, क्लिक करें, जो हमने चेंज पासवर्ड वाला प्रोग्राम बनाया था वो रन हो जाए। एग्जिट पे क्लिक करें तो इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएं। रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम रन हो और हमारे पास उसका आउटपुट आ जाए, ताकि हम नया रजिस्ट्रेशन करा सकें। सेम इन केस ऑफ मॉडिफाई, सेम इन केस ऑफ डिलीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा हमें? फॉर्म्स शो कराना। इवेंट हैंडलिंग। एक्शन क्या कराना पड़ेगा उसके लिए? इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग। किसके लिए इवेंट हैंडलिंग करानी है? मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम की। नाउ वी वांट टू हैंडल इवेंट्स फॉर द मेन्यू आइटम्स। व्हेन वी क्लिक ऑन अ मेन्यू आइटम, एक्शन इवेंट इज जनरेटेड। जब हम मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो एक्शन इवेंट जनरेट होता है। इट मींस नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू हैंडल एक्शन इवेंट। वी नो हाउ टू हैंडल एक्शन इवेंट। टू हैंडल एनी इवेंट, Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to import java.awt.event package. इवेंट। Now for action event handling, listener is action listener. Therefore we will implement action listener. Now for which components we have to handle the events? For all JMenu items. It means for CP we will say cp dot add action listener Add bracket में this, this. then we will say ex dot Ex. add action listener bracket में this, then we will say nr dot add action listener, then we will MR. say mr dot add action listener, then we will say dr dot add action listener. Clear students? Now we have to define Yes, sir. the method public void action perform bracket में action event A. Now first of all we will check if AE dot get source equal to CP. CP stands for change password. इसका मतलब है if user clicks on the menu item change password, so what should happen? Yes, sir. चेंज पासवर्ड का फॉर्म खुल जाए। change password का प्रोग्राम रन हो जाए। Clear students? यस सर। यस सर। तो अब हमें पता होना चाहिए हमने चेंज पासवर्ड वाला प्रोग्राम किस नाम से बनाया था। मैं आपको वो पहचान करनी बता रहा हूँ, कैसे पता लगाएंगे। हम उस फोल्डर में जाते हैं जिस फोल्डर में हमने सारे प्रोग्राम बना रखे थे। हमने सैंपल नाम के फोल्डर में बनाए थे। हम सैंपल फोल्डर में गए, वहां पे हमने ये चेंज पासवर्ड का प्रोग्राम बनाया था बाय द नेम चेंज पासवर्ड डेमो। क्लियर स्टूडेंट्स?
Yes, sir. Yes, sir. इस प्रोग्राम को एक बार पहले आप ओपन करें। जब इस प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो देखिए आपके पास ये प्रोग्राम आएगा। क्लियर? इस प्रोग्राम में Yes, sir. आपने दो क्लास बनाई है। एक क्लास बनाई है आपने इस प्रोग्राम में चेंज पासवर्ड के नेम से, और एक क्लास बनाई है आपने इस Correct. प्रोग्राम में चेंज पासवर्ड डेमो के नेम से। Demo के. स्टूडेंट्स, तो अब Yes, sir. हमें अपने मेन्यू वाले प्रोग्राम में कौन से क्लास की रिक्वायरमेंट है? चेंज पासवर्ड डेमो सर, की जिसमें रिक्वायरमेंट main है है। या केवल Change चेंज password. पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है? सर चेंज पासवर्ड Change डेमो। password. ओनली चेंज पासवर्ड। अब हमें चेंज पासवर्ड डेमो की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि चेंज पासवर्ड डेमो की रिक्वायरमेंट थी मेन की वजह से। अब हमारा मेन इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, मैं शेयर कर रहा हूं आपको दूसरा प्रोग्राम जो हमारा मेन प्रोग्राम है। अब हमने जो मेन लिखा हुआ है वो यहाँ मेन डेमो में लिखा हुआ है, तो हमें मेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चेंज पासवर्ड वाले प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर उस चेंज पासवर्ड वाले प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। चेंज पासवर्ड स्पेस ऑब्जेक्ट नेम जो भी आप देना चाहते हैं, आपने कहा CPP इक्वल टू न्यू चेंज पासवर्ड ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट चलते हैं। Else. एल्सिफ हमने कहा EX। ये EX में हमें क्या करना है? dispose. एग्जिट करना है। EX में देखिए डिस्पोज नहीं करना है, एक्सिस EX में हमें एग्जिट करना है। डिफरेंस समझ लीजिएगा, डिस्पोज और एग्जिट में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं डिस्पोज, इट मींस ओनली दिस फ्रेम विल बी डिस्पोज्ड। ओनली दिस फ्रेम Yes, विल sir. बी डिस्पोज्ड मींस केवल ये वाला फ्रेम हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे मान के चलिएगा, आपने इस प्रोग्राम को रन कराया, जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन कराया आपके पास मेन्यू ड्रिवन वाला प्रोग्राम आ गया, आपने फाइल मेन्यू एग्जिट पे क्लिक किया, तो डिस्पोज की वजह से आपका ये फ्रेम क्लोज हो गया और आप अपने सॉफ्टवेयर से बाहर आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम को रन कराया, रन कराने के बाद आपके पास ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आया, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आने के बाद आपने फाइल मेन्यू में चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, अब चेंज पासवर्ड का फ्रेम आ गया, आपने उस चेंज पासवर्ड के फ्रेम को क्लोज नहीं किया और वापस मेन मेन्यू वाले प्रोग्राम में जाके आपने एग्जिट कर दिया, तो डिस्पोज से केवल वो मेन मेन्यू वाला प्रोग्राम क्लोज होगा, चेंज पासवर्ड वाली विंडो क्लोज नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो एग्जिट से हमें क्या करना है? सारे फॉर्म सारे प्रोग्राम से बाहर आ जाना है, पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाना है, पूरे सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाना है। पूरे प्रोग्राम से पूरे सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में 0। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट इज a डॉट गेट सोर्स इक्वल टू nr। nr स्टैंड्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमने क्लास बनाई थी उस क्लास का नाम था रजिस्ट्रेशन, तो यहां पर हम रजिस्ट्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। भैया रिक्शा तुम्हारी वाला होगा। सेम मॉडिफाई के लिए कर लोगे, सेम डिलीट के लिए कर लोगे, सबके लिए एज इट इज कर लोगे। Yes, sir. नाउ क्लोजिंग ऑफ एक्शन परफॉर्म, क्लोजिंग ऑफ So, L- क्लास। सेव करते हैं, Else नहीं लगाया ऊपर वाले में NR में. एल शिफ्ट लगा देते हैं, टाई का मारी कान लाल कर दी मार मार के। सेव कराते हैं, बहुत टाई का है, टाई का। वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं। देख पा रहे हैं आउटपुट? Yes, sir. अकाउंट डिटेल्स पे जाते हैं, एग्जिट करते हैं पहले। देखिए एग्जिट हो गया प्रोग्राम से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर से रन कराते हैं, देन वी क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड। रन हो गया, देखिए चेंज पासवर्ड वाला प्रोग्राम। Screen share.
ताई का बोल दो, ताई ये मम्मी का देख पा रहे हैं? यस सर। नहीं, मम्मी Yes, का sir. Yes, sir. पासवर्ड चेंज करते हैं। याद है पासवर्ड आपको? वेलकम शायद यूजर आईडी था नहीं, इंडिया @123 यूजर आईडी था डिम्स, पासवर्ड था हमारा इंडिया इंडिया @123। @123 हमने नया पासवर्ड कर दिया वेलकम, वेलकम। कंफर्म पासवर्ड कर दिया वेलकम, शुरू कर ली। चेंज, मैसेज आ गया पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली। यस सर। आपने क्लोज किया, वापस मैं दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन बंद हो गई है ना, वापस आप अपने इस प्रोग्राम पे वापस आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। और आप एक चीज वो देखिएगा, जब मैं अकाउंट डिटेल्स में जाके चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूं तो चेंज पासवर्ड वाला फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारी मेन विंडो के सेंटर में आ रहा है। देखिएगा सेंटर में खुलता है। मेन विंडो के सेंटर में खुल रहा है। मेन विंडो के सेंटर में क्यों खुल रहा है? क्योंकि मैंने चेंज पासवर्ड वाले फॉर्म पे भी सेट लोकेशन रिलेटिव टू को नल कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। मैं दूसरा रन करके दिखाता हूं आपको, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन है, उसमें चेंज नहीं किया है अभी हमने। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम उस स्क्रीन के सेंटर में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं? यस सर। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सेट लोकेशन रिलेटिव टू को यूआरएल नहीं किया है। इसको भी करके देख लेते हैं एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका प्रोग्राम ओपन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन डेमो। दिस इज रजिस्ट्रेशन डेमो। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। यहाँ पर देते हैं सेट लोकेशन अगर मोबाइल गिर गया रिलेटिव टू ब्रैकेट में नल। सेव कर दिया। अब पहले इसको कंपाइल करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने चेंज किए हैं तो हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा। जावा सी स्पेस रजिस्ट्रेशन डेमो डॉट जावा। अब मेन वाला प्रोग्राम रन कराएंगे। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। यस सर। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये भी स्क्रीन के सेंटर में आ गया। देख पा रहे हैं? यस सर। क्लियर? यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन परमानेंट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। In this way, we can design main interface of our project, and we can link all of the modules, all of the program of our project with our main interface. अब आप सोच रहे होंगे, जो ये हमारा मेन स्क्रीन है, this is the main screen. मेन स्क्रीन देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस यस सर। अब हमारे इस मेन स्क्रीन पे केवल मेन्यूज आने हैं और कुछ नहीं आना है। बताइए स्टूडेंट्स। नो सर। क्या सर? ये जो मेन स्क्रीन है, इस मेन स्क्रीन पे केवल मेन्यूज ही आने हैं और कुछ नहीं आना है। नो सर। तो क्या करें हम, इस मेन स्क्रीन की बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा लें। जैसे ये हम बना रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज हम यहाँ पे लगा लें। अगर हम किसी हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हॉस्पिटल की इमेज लगा लें। अगर हम किसी रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट की इमेज लगा लें। अगर हम किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस स्पोर्ट्स की इमेज लगा लें। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. I have already told you how to place an image on your form. अब दोबारा से लगा के आपको Yes, दिखा sir. देता हूँ। ये हम वापस प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पर हमें इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? लेबल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जे लेबल ऑब्जेक्ट नेम। IMG. अब उस लेबल को क्रिएट करेंगे। लेबल को क्रिएट करने के लिए L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल। अब लेबल में हमें लाना है इमेज। इमेज लाने के लिए स्विंग के अंदर क्लास यूज करते हैं, इमेज आइकन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पर डबल कोट्स में पाथ दे देते हैं जो इमेज आप लाना चाहते हैं। हमारे पास इमेज है डी कॉलम पे सैंपल फोल्डर के अंदर। इमेज का नाम मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। में शोर हो रही है सर। ओके, ये भी आप चुप हो गए सर। ठीक है। अब यस सर। ओके, इमेज चेक कर लेता हूँ मैं किस नाम से बनाई है। ये इमेज हमने बना रखी है dvsdi.jpg। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल, हमने यहाँ पे कहा IM, ये लेबल बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। अब इस लेबल को हम फ्रेम पे प्लेस करेंगे सेंटर में अकॉर्डिंग टू बॉर्डर लेआउट। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले लेआउट सेट करेंगे। सेट लेआउट ब्रैकेट में न्यू बॉर्डर लेआउट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और फिर यहाँ पर हम इसको ऐड करा देंगे, ऐड L1। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में जाके ऐड होगा क्योंकि हमने कोई पोजीशन नहीं दी है। सेव कराएंगे, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फाइल कराते हैं। एक एरर आ गई है। एरर ये आई है कि हमें डबल स्लैश लगाना होता है जब हम प्रोग्राम के अंदर पाथ देते हैं। हमने सिंगल स्लैश लगाया है, मैं इसलिए इसको करेक्ट कर देता हूँ। डबल स्लैश लगा दिया, फिर सेव कर दिया, फिर दोबारा से कंपाइल करते हैं। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखिए एरर आ गई है बॉर्डर लेआउट में, बिकॉज बॉर्डर लेआउट क्लास इज अवेलेबल इन java.awt पैकेज। तो awt पैकेज भी इंपोर्ट करा देते हैं। इंपोर्ट java.awt.s3, सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। Has been compiled successfully? यस सर। रन कराते हैं, मैं आपको आउटपुट डिस्प्ले कराता हूं। तो अब आप देखिए आपके विंडो के बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। इस तरह से आप अपनी मेन स्क्रीन को, आप अपने मेन फॉर्म को के बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब ये मेन्यूज आप देख रहे हैं, हमारे पास दो मेन्यू है, अकाउंट मेन्यू और रजिस्ट्रेशन मेन्यू। यस सर। सपोज स्टूडेंट्स माई माउस इज नॉट वर्किंग, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर? यस सर। पहले नोटपैड देख लीजिए एक बार। ये नोटपैड देख रहे हैं आप? हेलो? यस सर। नोटपैड में फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, हेल्प मेन्यू है। क्लियर स्टूडेंट्स?
यस सर। आप देख रहे हैं अगर मेरा माउस मार्क वर्क नहीं कर रहा है तो हर मेन्यू में एक अल्फाबेट अंडरलाइंड है, देख पा रहे हैं? यस सर। अब मुझे जिस भी मेन्यू को ओपन करना है मैं ऑल्ट के साथ वही अंडरलाइन कैरेक्टर प्रेस करूं तो वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे मुझे फाइल मेन्यू के साथ वर्क करना है तो मैंने कहा ऑल्ट एफ, फाइल मेन्यू ओपन हो गया। अगर मुझे व्यू मेन्यू के साथ वर्क करना है तो मैंने कहा ऑल्ट वी, व्यू मेन्यू ओपन हो गया। अगर मुझे एडिट मेन्यू के साथ वर्क करना है तो मैंने कहा ऑल्ट ई, एडिट मेन्यू ओपन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। इसको क्या कहते हैं? शॉर्टकट्स। शॉर्टकट की, है ना? यस सर। यस सर। नहीं, इसको शॉर्टकट की नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट अ शॉर्टकट की। क्या कहते हैं इसको? दिस इज एक्सेस की। एक्सेस की। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको? एक्सेस एक्सेस की, ठीक है। शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की होती है, देखिए मुझे कोई नई फाइल ओपन करनी है तो मैंने सीधा प्रेस किया कंट्रोल ओ, तो आप देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। क्लियर? इसका मतलब जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया मेरी फाइल मेन्यू में ओपन कमांड क्लिक हो गई, क्योंकि ओपन कमांड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। मेन्यू करने के लिए जो की होती है दैट इज नोन एज शॉर्टकट की, सॉरी एक्सेस की। और मेन्यू आइटम को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए बिना मेन्यू ओपन करे जो की होती है दैट इज नोन एज शॉर्टकट की। दिखाता हूं मैं आपको दोनों में डिफरेंस। मैंने फाइल मेन्यू में क्लिक किया तो देखिए न्यू के लिए कोई एक्सेस की नहीं है, न्यू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, ओपन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। इसका मतलब है अगर मुझे ओपन करना है तो मुझे फाइल मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कंट्रोल ओ प्रेस कर दूंगा। तो ये ओपन में जाने का शॉर्टकट मेथड हुआ, इसलिए इसको कहते हैं शॉर्टकट की। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो मेन्यू आइटम्स के लिए क्या बनाई जाती है? एक्सेस की। मेन्यू आइटम्स के लिए शॉर्टकट की। शॉर्टकट की। क्लियर स्टूडेंट्स? और मेन्यूज के लिए क्या बनाई जाती है? एक्सेस की। दोनों ही हम बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे? अगर आपको एक्सेस की बनानी है मेन्यू के लिए, मेन्यू हमारे पास दो हैं M1 और M2। मान लीजिए आपको M1 के लिए एक्सेस की बनानी है तो आप लिखेंगे M1 डॉट सेट निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग होगी कैपिटल M NEMONIC। सेट निमोनिक ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कोट्स में वो अल्फाबेट जिसको आप एक्सेस की बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अकाउंट डिटेल्स में हम ए को एक्सेस की बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमने अल्फाबेट दे दिया ए। दूसरा मेन्यू है आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसके लिए आप एक्सेस की बनाना चाहते हैं तो आपने कहा M2 डॉट सेट निमोनिक। आपने कहा इसके लिए हम आर को बनाना चाहेंगे तो आपने कह दिया आर। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। इसको सेव करा लिया, कंपाइल कराते हैं। कंपाइल किया, हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुल, एरर आ गई है देखिए। M2 की स्पेलिंग गलत हो